میں نے عبداللہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر مسافہ کیا۔ اس نے بات جاری رکھی، بولا اسی درگاہ کا ایک مجاور ہوں، خدمت کرتا ہوں یہاں آنے والے زائرین کی۔ میں نے غور سے عبداللہ کی جانب دیکھا، کہا آپ اپنی گفتگو سے تو پڑھے لکھے لگتے ہیں، پھر یہ سب کچھ؟ میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ میری بات سن کر ہلکے سے مسکرایا، بولا شاید آپ بھی پڑھائی کا مقصد صرف کسی سرکاری نوکری کا حصول ہی سمجھتے ہیں۔ ویسے میں نے بھی کچھ صفحے سیاہ تو کیے تھے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ اب تک صرف وقت ہی ضائع کرتا رہا۔ بہرحال آپ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں، دراصل میرے دوست نیچے ساحل پر میری راہ تک رہے ہوں گے، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میں نے عبداللہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا اور واپسی کے لیے پلٹا۔ پیچھے سے عبداللہ کی آواز سنائی تھی، کوئی منت نہیں مانگیں گے آپ؟ میں مسکرا کر پلٹا، کہا چلیں یہ وعدہ رہا، جب کبھی کوئی منت مانگنی ہوئی یہی آپ کی اسی درگاہ میں آ کر مانگوں گا، امید ہے سنوائی ہوگی۔ میری بات سن کر عبداللہ بھی مسکرا دیا، بولا مجھے انتظار رہے گا۔ میں اس کی جانب الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا کر سیڑھیاں اتر گیا۔ نیچے وہ سبھی میرے لیے فکر مند ہو چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلے عینی برس پڑی، ساحر یہ کیا مذاق ہے؟ تم جانتے ہو ہم سب یہاں تمہاری وجہ سے کس قدر ہلکان ہو رہے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کچھ ہمارا بھی خیال ہے تمہیں؟ وہ روحانسی سی ہو کر چپ ہو گئی۔ میں نے ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہا معاف کر دو یار، میرا ارادہ اتنی دیر لگانے کا نہیں تھا، بس دیر ہو ہی گئی۔ میں دوسری پہاڑی کی چوٹی پر بنی درگاہ دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میرے منہ سے درگاہ کا نام سنتے ہی وہ سب یوں اچھلے جیسے میں نے ان کے عین سامنے کوئی بم پھوڑ دیا۔ درگاہ؟ ساحر تم؟ خیریت تو ہے نا؟ ان سب کی حیرت بجا تھی۔ ہم میں سے وہاں ایسا کوئی بھی نہ تھا جس نے آج تک درگاہ تو کیا عیدگاہ کی بھی زیارت کی ہو۔ ہم وہ تھے جن کے لیے لوگ منتیں مانگتے تھے، ہمیں بھلا ایسی جگہوں سے کیا واسطہ؟ ہم تو خود ایک منت کے طور پر اس دنیا میں وارد ہوئے تھے، جنہیں بن مانگے ہی اس جہان میں سب کچھ میسر تھا۔ پھر بھلا ہمیں کیا ضرورت تھی ان درگاہوں اور مسجدوں میں ماتھا ٹیکنے کی؟ ہم سے تو ہمارا خدا ویسے ہی سدا کے لیے راضی تھا۔ میں نے جرمانے کے طور پر اسی رات سب کو ہالیڈے ان میں ڈنر کی دعوت دی، تب جا کر ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ لیکن عینی ابھی تک روٹھی روٹھی سی تھی۔ وہ مجھ پر دوسروں سے کہیں زیادہ اپنا حق سمجھتی تھی اور اسی حق کا مان اسے یوں روٹھنے پر مجبور بھی کر دیتا۔ عینی کی یہ خاموشی واپسی پر بھی تمام راستے برقرار رہی، لیکن میں جانتا تھا کہ حسب معمول آدھی رات کو مجھے فون کیے بنا اسے نیند نہیں آئے گی۔ لیکن اس رات تھکن کی وجہ سے میں اس قدر گہری نیند میں تھا کہ نہ جانے کتنی گھنٹیوں کے بعد فون اٹھایا۔ دوسری جانب سے عینی کی پریشان اور کسی قدر جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری، اتنی دیر کیوں لگا دی فون اٹھانے میں؟ اس کی جھنجھلاہٹ پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کہا ابھی چند گھنٹے پہلے تم نے درجنوں لوگوں کی موجودگی میں یہ سب عہد کیا تھا کہ اب آئندہ تم مجھ سے کبھی بات نہیں کرو گی۔ وہ بولی تم جانتے ہو نا کہ تم سے بات کیے بنا نہیں رہ پاؤں گی، اسی لیے اتنا کرتے ہو۔ میں نے کہا یار میری کیا مجال کہ میں گورنر صاحب کی اکلوتی بھتیجی کے سامنے ذرا سی بھی اکڑ دکھانے کی جرت کروں، مجھے جیل جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بولی مذاق مت کرو ساحر، میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کہا اچھا بولو کیا چاہتی ہو؟ دوسری جانب سے عینی کی شرارت بھری آواز ابھری، تمہیں؟ میں نے کہا اچھا تو یہ تم سنجیدہ ہو؟ عینی نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری، بولی یہی تو مسئلہ ہے، تم نے کبھی میری محبت کو سیریس لیا ہی نہیں۔ عینی پر ایسے دورے مہینے میں ایک آدھ بار ضرور پڑتے تھے اور لگتا تھا کہ آج کی رات پھر انہی راتوں میں سے ایک تھی جب ہماری زوردار بحث ہونے والی تھی، لیکن آج میں اس سے بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کم آن عینی، تم جانتی ہو کہ میں یہ محبت وغیرہ پر بالکل یقین نہیں رکھتا۔ محبت صرف جسم کے حصول کی درخواست کا ایک مہذب ذریعہ ہے، بس ایک لفظ ہے اپنی خواہشات پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ میری بات سن کر چپ سی ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی میں تو تمہیں یہ دعا بھی نہیں دے سکتی کہ تمہارے دل کی بنجر زمین پر یہ خود رو پودا اگ جائے اور اس کے کانٹے تمہاری روح کو بھی اپنی کاٹ اور چبھن سے زخمی کر دیں۔ تمہارا قصور نہیں ہے ساحر، شاید یہ میری آزاد خیالی ہی میرے جذبے کو بے وقت کرنے کا باعث بنتی ہے۔ سویٹ ڈریمز۔ عینی نے فون کاٹ دیا۔ میں حیرت سے فون کو دیکھ رہا تھا، اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے اچانک؟ آج سے پہلے تو کبھی اس نے اس قدر ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ پھر میں نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید شام کی بیئر نے اپنا اثر اس وقت دیر رات کو دکھانا شروع کیا ہوگا۔ میں نے کروٹ لی اور پھر آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئیں۔ اگلے چند دن میں ہر بڑی امریکن گاڑی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں چونک سا جاتا اور میری نظریں دور تک اس گاڑی کا پیچھا کرتی رہتی، لیکن مجھے وہ بڑی شیورلے دوبارہ نظر نہ آئی۔ پتہ نہیں وہ اس شہر میں رہتے بھی تھے یا پھر کہیں اور سے اس درگاہ کی حاضری کے لیے آئے تھے۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میری اس بے چینی کی اصل وجہ کیا تھی۔ اور پھر سب سے پہلے کاشف نے میری یہ کار یاترا محسوس کر لی۔ چوتھے دن اس نے مجھ سے آخر کار پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے یار، یہ آج کل ہر بڑی امریکن گاڑی کو دیکھ کر تم اس کے پیچھے ہی کیوں پڑ جاتے ہو؟ میں نے اس روز درگاہ پر ہونے والی تمام واردات اسے تفصیل سے سنا دی۔ بولا او ہو تو یہ بات ہے،
अब समझा। मेरा यार दरअसल गाड़ी नहीं बल्कि गाड़ी वाले की तलाश में सरगर्दा है। यार किसी को तो बख्श दिया करो। जो हुलिया तुमने उस लड़की का अभी बयान किया है, इससे एक बात तो कंफर्म है कि शी इज नॉट योर टाइप। मैंने कहा, शट अप यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ एक तजस्सुस है कि आखिर इस शहर में ऐसी कौन सी फैमिली है जो मेरी तरह गाड़ियों का शौक रखती है, लेकिन मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। काशिफ बोला, यह भी तो हो सकता है कि वो लोग इस शहर से ताल्लुक ही न रखते हों, कहीं और किसी दूसरे शहर से वहां आए हों। मैंने कहा, यही तो उलझन है कि ये बात कैसे मालूम की जाए कि वो लोग कहां से आए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उस लड़की की उदास आंखों में छुपी दास्तान पढ़ना चाहता था, लेकिन अफसोस पढ़ नहीं पाया। काशिफ कुछ देर तक गौर से मेरी जानिब देखता रहा, फिर एकदम अचानक खड़ा हो गया। बोला, चलो उठो। मैंने पूछा, कहाँ? बोला, आओ उसकी आंखों की कहानी का राज जानने के लिए। चलो अब देर न करो। मैं काशिफ की आदत से वाकिफ था। एक बार जो बात उसके जहन में बैठ जाती, फिर उसे निकालना हम में से किसी के भी बस की बात नहीं थी। कुछ ही लम्हों के बाद काशिफ की चिरोकी जीप तेजी से उसी सड़क पर रवां थी जो उसी वीरान साहिल की पट्टी की जानिब जाती थी जहां वो दरगाह थी। काशिफ ने जीप बिल्कुल सीढ़ियों के करीब लाकर खड़ी कर दी। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? वो बोला, तुम्हें वो गाड़ी यहीं नजर आई थी ना, तो अगर हमें उस गाड़ी का सुराग मिल सकता है तो वो यहीं से मिलेगा। चलो ऊपर दरगाह में चलकर कुछ सुनगुन लेने की कोशिश करते हैं। मेरे पास काशिफ की बात मान लेने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। हम दोनों तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए दरगाह के सहन तक जा पहुंचे। बाहर बैठे एक मुजावर ने हमें जूते उतारने का इशारा किया। जूते उतारते हुए मैं कुछ याद करके चौंक सा गया। उस रोज भीड़ की वजह से शायद उस दरवाजे पर बैठे मुजावर की मुझ पर नजर न पड़ सकी थी, लिहाजा मैं जूतों समेत ही दरगाह के सहन में दाखिल हो गया था। मुझे तो इन आदाब का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब्दुल्लाह की नजर तो मेरे जूतों पर जरूर पड़ी होगी, तो फिर आखिर उसने मुझे जूते उतारने का क्यों नहीं कहा। मैं इसी सोच में गुम काशिफ के पीछे पीछे दरगाह के सहन में दाखिल हो गया। काशिफ ने धीरे से मेरे कान में कहा, मैं दरगाह के मुतवल्ली से उस गाड़ी का सुराग लगाने की कोशिश करता हूँ, तुम यहीं ठहरो। मैं जानता था कि काशिफ ऐसे मामलात में पैसे की ताकत पर यकीन रखता है। वो जरूर मुतवल्ली के हाथ पर 1000 रुपए रखेगा और उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। काशिफ तेजी से दरगाह के पिछले दरवाजे से निकलकर किसी जानिब गायब हो गया। मैंने गहरी सांस ली और पीपल के पेड़ों के नीचे रखे पानी के घड़ों की जानिब बढ़ गया। अचानक ही पेड़ों के पीछे से अब्दुल्लाह आता दिखाई दिया। उसके हाथ में छोटा सा फव्वारा था, शायद वो फूलों को पानी देकर वापस आ रहा था। हम दोनों की नजर बैक वक्त टकराई। अब्दुल्ला ने खुश दिली से मेरा इस्तकबाल किया। अरे आप, क्या मैं ये समझूं कि मन्नत मांगने का वक्त इतनी जल्दी आ गया? मैं हंस दिया, कहा नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। दरअसल किसी की खोज मुझे दोबारा यहाँ खींच लाई है। अब्दुल्ला ने गौर से मेरी जानिब देखा। बोला, मैं दुआ करूंगा कि आपकी खोज तिश्ना न रहे। मैंने कहा, थैंक यू। वैसे एक बात कहूं, अगर बुरी न लगे, हम दोनों ही तकरीबन हम उम्र हैं और ये आप जनाब के चक्कर में पड़कर हम खामखा ही तकल्लुफ के धागों से बंधे जा रहे हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे को तुम कहकर मुखातिब करें तो मैं बहुत ईजी महसूस करूंगा। अब्दुल्ला मुस्कुराया। बोला, चलो ऐसा ही सही। लफ्ज और अलकाब तो सिर्फ इजहार का एक जरिया होते हैं। मैंने कहा, एक बात बताओ, उस दिन पहली मर्तबा जब मैं इस दरगाह तक आया था तो मैं अपनी लाइल्मी की वजह से जूते उतारना भूल गया था, लेकिन तुमने मेरे जूते देखकर भी मुझे उतारने को नहीं कहा। क्या तुम नहीं समझते कि इस तरह अनजाने में ही सही पर मैंने दरगाह के फर्श की बेहुरमती की है? अब्दुल्ला ने कहा, फर्श तो फिर से धुल सकता है, सो धो लिया गया था, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुम्हें तुम्हारी पहली हाजिरी पर ही टोक दूं। मुझे हैरत हुई कि ये कैसा मुजावर है जो अपनी दरगाह के फर्श से ज्यादा दिलों के मैले होने को अहम गर्दानता है। मैंने गौर से अब्दुल्लाह की जानिब देखा। कहा, तुम अपने तौरतवार से किसी भी तरह इस दरगाह के मुजावर नहीं लगते। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? अब्दुल्ला के चेहरे पर उसकी वही मलीह सी मुस्कुराहट फैल गई। बोला, बस यूं समझ लो कि मुझे भी किसी की खोज यहाँ तक खींच लाई है। मैंने कहा, तो क्या तुम्हारी खोज अभी मुकम्मल नहीं हुई? उसने कहा, मेरी खोज तो शायद कभी मुकम्मल ना हो। मैं जिस रास्ते का मुसाफिर हूँ उसकी मंजिल आने से पहले ही जिंदगी की शाम हो जाती है। ये दरगाह भी सिर्फ मेरा एक पड़ाव ही तो है, जाने कब यहाँ से भी कूच करने का परवाना मिल जाए। मैं हैरत से अब्दुल्ला का ये फलसफा सुनता रहा। ये मेरी इस नौजवान से दूसरी मुलाकात थी और दोनों मर्तबा मैंने महसूस किया था कि अब्दुल्ला वो नहीं है जो वो बज़ाहिर नजर आता है। इतने में काशिफ दरगाह के अक़बी हिस्से से नमूदार हुआ और उसने वहीं से मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैंने अब्दुल्ला से रुखसत चाही। कहा, ये हमारी दूसरी लेकिन तिश्ना मुलाकात थी। उम्मीद है तीसरी मुलाकात जल्द होगी और हम दोनों तब ठीक तरह से एक दूसरे को जान पाएंगे। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर मुझसे जवाबी मुसाफा किया। कहा, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। मैं काशिफ की वजह से जल्दी में था, लिहाजा अब्दुल्ला की इस गहरी बात पर ज्यादा गौर न कर सका। काश मेरा फहम उस वक्त इस कदर वसी होता और अब्दुल्ला की इस पेशगोई को समझ पाता कि आइंदा मेरी जिंदगी में कैसे कैसे तूफान बर्पा होने वाले हैं। जब मैं दरगाह से बाहर निकला तब तक काशिफ जीप में सवार हो चुका था।
मेरे बैठते ही उसने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। बोला काम बन गया है, मैंने पूरी मालूमात हासिल कर ली है। मैंने बेचैन होकर काशिफ से वजाहत चाही। कहा रुको मत, बोलते रहो। काशिफ ने गाड़ी हाईवे पर डालकर रेस बढ़ा दी। बोला दरअसल पिछली मर्तबा जब हम यहाँ रेस के लिए आए थे तब वो जुमेरात का दिन था, इसीलिए उस दिन यहाँ तुम्हें बहुत ज्यादा भीड़ भी नजर आई थी। वो गाड़ी भी यहाँ हर जुमेरात को आती है। गाड़ी के मालिकान के बारे में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं जान सका, बस इतना पता चला है कि कोई जद्दी पुश्ती रईस हैं। जिन दो औरतों को तुमने देखा वो माँ बेटी हैं। कभी कभार उनके साथ लड़की का बाप भी चढ़ावा चढ़ाने आता है। अलबत्ता माँ बेटी का गुज़श्ता 2 बरसों से ये पक्का मामूल है कि वो हर जुमेरात की शाम यहाँ आती हैं और हर हफ्ते हजारों रुपए का चढ़ावा चढ़ाकर वापस चली जाती हैं। मैंने कहा तुम्हें ये सब कुछ किससे पता चला? मेरा मतलब है कि जुमेरात की शाम आने वाले ज़ायरीन की तादाद तो अच्छी खासी होती होगी, फिर उनके दरमियान एक खास खानदान को याद रखने वाला कौन हो सकता है? काशिफ जोर से हंसा। बोला आपकी इसी मासूमियत पर कुर्बान जाने को जी चाहता है जनाब। यार चाहे हर जुमेरात सैकड़ों लोग दरगाह की ज़ियारत को आते हों, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हर बार हजारों रुपए की नजर देता हो। फिर उनकी गाड़ी और उनके रख रखाव को तुमने खुद नोटिस किया है। ऐसे लोग हजारों की भीड़ में भी हों तब भी उन्हें पहचाना जा सकता है। अब अपना ज्यादा सर मत खपाओ, सिर्फ 2 दिन की बात है। इस जुमेरात को हम खुद यहाँ दरगाह के दरवाजे के करीब डेरा लगाए बैठे होंगे। सिर्फ एक बार कार का रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाए, फिर उस खानदान का खोज लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जस्ट वेट मेरी जान। अगले 2 दिन मेरी जिंदगी के शायद सबसे ज्यादा बेचैन शब रोज थे, पर वक्त किसी तौर गुजर ही जाता है। सो ये 2 दिन भी कट ही गए और जुमेरात की सपहर मैं और काशिफ दोनों ही उस पहाड़ी चट्टान की चोटी पर बैठे उस कार का इंतजार कर रहे थे जहां से पहली मर्तबा मेरी नजर उस गाड़ी पर पड़ी थी। वक्त भी उस कछुए की तरह धीरे धीरे सरक रहा था जो दूर साहिल के किनारे पानी में उतरने की कोशिश में सरगर्दा था, लेकिन हर बार समंदर की एक बड़ी लहर उसे उठाकर फिर से दूर रेतीले साहिल पर पटक देती। मैंने भी जितनी मर्तबा अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी, मुझे यही लगा कि मेरी घड़ी की सुइयों को भी वक्त की ऐसी ही कोई मुंह जोर लहर उठाकर बार बार पीछे पटक देती है। तब वो मेरा 13वां सिगरेट था जब अचानक काशिफ जोर से चिल्लाया, वो आ गई। मैं मुतवक्के इंतजार के बावजूद यूं जोर से चौंक कर पलटा जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। दूर बल खाती सड़क पर वही शेवरले रेत उड़ाती दौड़ी चली आ रही थी। हमारे दरगाह की सीढ़ियों तक पहुंचने के वक्फे में वो दोनों माँ बेटी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा चुकी थीं। काशिफ ने जानबूझकर अपनी जीप शेवरले कार के बिल्कुल करीब लाकर खड़ी की। कार का वो बावर्ती शोफर आज भी उसी तरह कार की सफाई में मसरूफ था। उसकी जीप से उतरते हुए जब मुझ पर नजर पड़ी तो उसकी आंखों में शनासाई की एक झलक लहराई। जल्दी से सलाम करके बोला, अरे साहब, लगता है आप भी हमारी बेगम साहिबा की तरह हर जुमेरात को यहाँ आते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारी तो ये दूसरी ही जुमेरात है। दरअसल मेरे दोस्त को इस दरगाह की जियारत का बहुत अरमान था, सो इस हफ्ते उसे यहाँ लेकर आया हूँ। काशिफ मेरा इशारा समझ गया और गाड़ी के गिर्द घूम फिर कर ड्राइवर से बातों में मशगूल हो गया। ड्राइवर ने चूंकि आज हमें खुद एक बेहद कीमती गाड़ी से उतरते देखा था, इसलिए उसके रवैये में मरूबियत की एक वाज़ेह झलक थी। मैं काशिफ को ड्राइवर से मालूमात लेता छोड़कर सीढ़ियां चढ़ता हुआ दरगाह के सहन में जा पहुंचा। आज मैं जूते उतारना नहीं भूला था। सहन में पिछली जुमेरात की तरह लोगों का एक मेला सा लगा हुआ था और बेहद भीड़ थी। मुझे अब्दुल्ला कहीं दिखाई न दिया। मैंने उस मारूख की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई तो वो दोनों माँ बेटी मुझे दरगाह की मरकजी इमारत के बरामदे में बनी पत्थर की जाली के करीब बैठी हुई दिखाई दी। और फिर मेरे साथ वही हुआ जो पहली मर्तबा उस लड़की को देखने के बाद हुआ था। यकायक आसपास की सारी भीड़, सब लोगों का हुजूम और उनका सभी शोर यकदम मौकूफ सा हो गया। फजा जैसे साकित सी हो गई और मुझे यूं लगा जैसे उस वसीउ अरीज संगे मरमर के धुले सहन में सिर्फ मैं और वो ही मौजूद हैं। हम दोनों के दरमियान सिर्फ तन्हाई है और कायनात का हर जर्रा खामोश है। हत्ता के आसपास चलती हुई पुरवाई भी गूंगी सी होकर सिर्फ जिस्मों को छू कर गुजर रही है। अचानक कोई सवाली मुझसे जोर से टकराया और एक झटके से मेरे हवास वापस आ गए। मैं वहीं सहन में खड़ा था। जाने 2 पल गुजरे थे या 2 सदियां, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। लड़की अब भी उसी जज्ब के आलम में दुजानो बैठी जाली की तरफ मुंह किए गिड़गिड़ाते हुए कोई दुआ मांग रही थी। मैं सहरज़दा सा उसे देखता रहा। काली चादर ने उसका दमकता नूर और भी वाज़े कर दिया था, और अगर मैं शायर होता तो शायद उसी लम्हे उसके हाथों की गुलाबी मखरूती उंगलियों और लरसती पलकों पर पूरा दीवान लिख डालता। रफ्ता रफ्ता लड़की का जिस्म हिचकियों से बाकायदा लरजने लगा और वो ज़ारो कतार रोने लगी। उसकी माँ ने घबरा कर उसे थामा। आज उनके साथ उनकी कोई खादिमा भी आई थी। लड़की की माँ ने सरासीमगी के आलम में उसे पानी की बोतल देने को कहा। खादिमा हड़बड़ाती हुई सी उठ कर बाहर की जानिब भागी। शायद वो गाड़ी से पानी लेने गई थी। कभी कभी लम्हे के किसी 1000वें हिस्से में इंसान का दिमाग उसे वो कुछ करने पर मजबूर कर देता है जो आम हालात में वो कभी सोच भी नहीं सकता। कुछ ऐसा ही उस वक्त मेरे साथ हुआ।
मेरे कदम खुद ही यकबयक सहन में दरख्तों के नीचे पड़े पानी के घड़ों की जानिब बढ़ गए और मैं किसी सहरज़दा रूह की तरह पानी का गिलास लिए उस लड़की की माँ के पास जा पहुंचा। माँ ने जल्दी से बिना देखे गिलास पकड़कर बेटी के मुंह से लगा दिया। पानी पीकर उस परी की हालत कुछ संभली, लेकिन उसका रंग अब भी सरसों के किसी ताज़ा फूल की मानिंद जर्द था। माँ ने गिलास वापस करते हुए तशक्कुर भरी नजरों से मुझे देखा। शुक्रिया बेटा। मैं गिलास लिए चंद कदम दूर हट कर खड़ा हो गया। उन चंद लम्हों में न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मेरे सारे लफ्ज कहीं खो गए हों। मुझसे कुछ भी बोला न गया। उस एक लम्हे में मुझे ज़बान और लफ्ज़ों की अहमियत और कुव्वत गोयाई से महरूम बदनसीबों की बेबसी का बहुत शिद्दत से अंदाजा हुआ। इतने में उनकी खादिमा भी दौड़े हुए हाथ में पानी की बोतल लिए वापस पहुंच चुकी थी। माँ ने चंद घूंट पानी बोतल से भी लड़की को पिलाए। खादिमा की मदद से लड़की को खड़ा किया और वापसी के लिए चल पड़ी। माँ ने जाते जाते एक मर्तबा फिर मेरी जानिब मोहब्बत भरी निगाह डाली और ज़ेर लब शायद कोई दुआ भी दी, लेकिन मैं यूं ही बिना पलकें झपकाए साकित खड़ा रहा। होश उस वक्त आया जब वो तीनों दरगाह का सहन पार करके बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। मैं एकदम हवास बाख्ता होकर यूं बाहर की जानिब लपका जैसे कोई मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन कर ले भागा हो। लेकिन जब मैं ज़ायरीन की भीड़ से उलझता रास्ता बनाता हुआ बाहर सीढ़ियों तक पहुंचा, वो लोग अपनी गाड़ी में बैठ कर जा चुके थे। ड्राइवर ने काशिफ से हाथ मिलाया और मैंने दूर ही से गाड़ी को रवाना होते देख कर बेबसी से हाथ मले। उस वक्त मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। कुदरत ने आज खुद मुझे इतना बेहतरीन मौका दिया था। मैं कम से कम उसकी माँ की दुआ का जवाब तो दे सकता था, उन लोगों की सीढ़ियों से उतरने में मदद तो कर सकता था, लेकिन मैं तो बस किसी माजूर इंसान की तरह खड़ा ही रह गया।